अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक पेज नंबर 56। यस 56। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल वॉल कंप्लीट करवाया था। आज इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल प्रोकैरियोट्स and eukaryotic cells have plasma membrane that encloses their contents and serve as semi-porous barrier to the outside environment. Structure of plasma membrane. The fluid mosaic model is a widely accepted concept that describes the dynamic nature of plasma membrane. It was proposed by two American biologists, S. J. Singer and Gert Nicholas, in 1972. According to the fluid mosaic model, the basic foundation of plasma membrane is a lipid bilayer. This lipid bilayer is made up of phospholipid, a collection of protein float within the lipid bilayer. The phospholipids have the phosphate group at one end and at one end of each molecule. Phospholipids are characteristic hydrophilic, water-loving, and their phosphate and are hydrophobic, water-faring. Along their tail region containing carbon-hydrogen chain in the lipid bilayer of plasma membrane, the hydrophilic lipid tails are oriented inward and the hydrophilic phosphate groups are aligned outward, either toward the cytoplasm of the cell or extracellular environment. In eukaryotes, plasma membrane have cholesterol molecules wedged into the phospholipid bilayer. They keep the fluidity of membrane at low temperatures. Many proteins float within the phospholipid bilayer of plasma membrane. Some other proteins simply adhere to the surfaces of the bilayer. The positioning of protein is related to the organization of cytoskeleton. Plasma membrane protein function in several different ways. Many proteins play important role in selective transport of certain substances according to phospholipid bilayer, either acting as channels or active transport molecules. Some proteins help in attachment of plasma membrane to the cytoskeleton and external fibers. Some protein on the exterior surfaces attach with sugar and make identification marks. Other protein function as receptors which bind messenger molecules, that is hormones, and transmit signal to the interior of the cell. Some proteins also exhibit enzymatic activity catalyzing various reactions related to the plasma membrane. The outside surface of plasma membrane has chains of sugar bonded to protein and lipids. A protein with attached sugar is called a glycoprotein, whereas a lipid with attached sugar is called glycolipid. The glycoprotein and glycolipid vary from species to species, from individual to individual in the same species, and even from one cell type to another in the same individual. The glycolipid and glycoprotein, collectively called glycolysis, function as cell identification marks. They are recognized by other cells. मैंने अभी टॉपिक आपका रीडिंग किया है, डैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स हैं सबके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि ये सर्व करती है एज ए सेमी पोरस बैरियर बिटवीन द सेल आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि जो आउटसाइड की इन्वायरमेंट है और जो सेल के इनसाइड की इन्वायरमेंट है उसके दरमियान में एक ब्रिज का जो है वो काम कर रही है। ठीक है, सेमी पोरस जो है बैरियर के तौर पे ये एक्ट करती है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। आप लोग 9th क्लास में बेटे 10th क्लास में भी इसका स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। वहां पे आपने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चीज़ वही है, वही मॉडल है, लेकिन आपको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन फर्स्ट ईयर में जो है वो किया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या एक मॉडल है, वो मॉडल से हमें जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो समझाया हुआ है।
उस मॉडल का नाम क्या है बेटे? उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और ये मॉडल जो है, ये दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे बेटे, एक का नाम था S.J. सिंगर और एक का नाम था गर्ट निकोलस। इन्होंने 1972 में जो है ये मॉडल प्रेजेंट किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली सॉरी बेटे, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बायलेयर। लिपिड की लेयर को तो आपको पता है बायमीन 2, यानी कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। और ये जो लिपिड की जो लेयर्स हैं, जो बाई लेयर्स हैं, ये किससे मिली बनी होती हैं? ये बनी होती हैं फास्फोलिपिड से। किससे बेटे? फास्फोलिपिड से। और इन लिपिड बाय लेयर्स के अंदर प्रोटीन जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। मैंने क्या बताया कि लिपिड बाय लेयर जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाय लेयर। लिपिड बाय लेयर, बाय मीन 2, लिपिड की 2 लेयर्स हैं और ये दोनों लेयर्स बेटे फास्फोलिपिड्स की बनी होती हैं। और इन लेयर्स के दरमियान में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो फ्लोट कर रहे होते हैं। फिर क्या था कि जो फास्फोलिपिड्स हैं, इनके एंड्स है ना, एक एंड है और 2 एंड है, 2 एंड्स होते हैं ना। एक एंड जो है इनका, उसके साथ क्या चीज़ अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या चीज़ अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि आप पहले इस तरह समझ लो चलो कि जो फास्फोलिपिड है, हर चीज़ देखो 2 एंड्स होते हैं ना, एक राइट एंड होगा, एक लेफ्ट एंड होगा, ऐसे ही है। तो फास्फोलिपिड के जो एंड है वो क्या है? उनके साथ क्या चीज अटैच होती है बेटे? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड हम वर्ड बोल रहे हैं फास्फोलिपिड, अभी मैं बता के आई हूँ कि जो लिपिड बाय लेयर है वो किसकी बनी हुई है? वो फास्फोलिपिड की बनी हुई है, ठीक है। फास्फोलिपिड के साथ जो है वो क्या चीज अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। फास्फोलिपिड जो है इनके 2 तरह के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि जो इनके एंड है वो क्या, मैंने बता दिया, फॉस्फेट एंड है, ठीक है। उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। एक एंड को हम लोग हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं और एक एंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो क्या चीज है? हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग। वो एंड जो वाटर लविंग है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं? यानी कि फॉस्फेट एंड है। दोबारा सुनो, मैं किसकी बात कर रही हूँ? फास्फोलिपिड्स की, ठीक है। फास्फोलिपिड्स के एंड्स में क्या चीजें अटैच हैं? फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। फास्फोलिपिड्स के जो एंड है, एक क्या है? वाटर लविंग है और एक कौन सा है? वाटर फेरिंग है, ठीक है। वाटर लविंग एंड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन वाटर एंड फोबिक मीन फेरिंग। एक एंड को हम लोग हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। और इनके दरमियान में जो है वो चेन्स प्रेजेंट है। वो चेन्स किस चीज़ की हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स जो हैं वो इनके टेल्स रीजन में जो हैं वो प्रेजेंट है। हाइड्रोफिलिक अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होते हैं ना, ये अंदर की तरफ इनके इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोफोलिक होते हैं वो क्या होते हैं? ये बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें हुई ना। एक बेटे हम क्या पढ़े हैं? मैंने आपको बताया हम फास्फोलिपिड्स पढ़े हैं। तो एक चीज है इनवर्ड, एक चीज है आउटवर्ड, ठीक है। तो जो हाइड्रोफोबिक हमने इनके एंड्स पढ़े थे ना, 2 एंड्स थे ना। एक मैंने क्या कहा? एक एंड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। और एक एंड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जो हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि जो हाइड्रोफोबिक लिपिड टेल है उसकी, वो क्या होगी? वो इनवर्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन है। और जबकि हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप है, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है बेटे? आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, टुवर्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और या इसको कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्युलर इन्वायरमेंट की तरफ है। अच्छा, फिर हम आते हैं यूकैरियोट्स की तरफ। यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा भी एक चीज़ ऐड है, एक और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एड्स हैं। लेकिन ये किसमें? ये बेटे प्रोकैरियोट्स में नहीं है, सिर्फ यूकैरियोट्स में है। वो क्या चीज़ है? दैट इज कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्फोलिपिड्स जो बाय लेयर है उसके अंदर बिल्कुल अंदर गए होते हैं, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी क्या होती है? लिक्विड की इन एंड आउट जो मूविंग है उसको जो है इन्हांस करती है, उसको जो है वो जारी रखती है। दे कीप द, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन जो हैं वो फास्फोलिपिड में जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन जो है वो जो लिपिड की बायलेयर्स हैं उनके साथ जो है वो अटैच होते हैं।
और बेटे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो प्रोटीन की जो पोजीशन होगी, यानी कि प्रोटीन, आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि प्रोटीन जो है वो लिपिड बायलेयर जो हैं, जो 2 लेयर्स हैं, उनके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इन प्रोटीन की जो पोजीशनिंग है वो जो साइटोस्केलेटन है बेटे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका जो है लिंक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे फंक्शन जो है वो करती है, वो सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, दोबारा से मैं एक एक मेन पॉइंट जो है वो पहले रिपीट कर देती हूँ, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम एक मॉडल देखते हैं, डेट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंगली जो लिपिड्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। ठीक है, 2 लिपिड लेयर, बाय लेयर कहते हैं उसको, 2 लेयर्स हैं। ठीक है, इन लिपिड बाय लेयर्स के अंदर जो है, दीज आर नोन एज फास्फोलिपिड। ठीक है, और इनके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, और इनका जो है 2 एंड्स होंगे ना, एक जो फास्फोलिपिड का एक एंड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और एक एंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो क्या होता है, इनवर्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। जो हाइड्रोफिलिक है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, आउटवर्ड होती है। फिर हमने बात की थी यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में लिपिड्स बायलेयर और प्रोटीन्स के अलावा एक थर्ड मॉलिक्यूल भी जो है वो अटैच होता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड बायलेयर के अंदर बिल्कुल जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोटीन जो है वो लिपिड के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, उसके अंदर नहीं बल्कि उसके साथ। और प्रोटीन जो है, ये जो है फास्फोलिपिड बायलेयर के अंदर जो है कुछ प्रोटीन जो है वो फ्लोट भी करते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन्स की बेटे पोजीशनिंग है वो सेल के साइटोस्केलेटन की जो है उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सारे हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर। अभी मतलब अगर आपका नोट आता है या आपका सिंपल क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये स्ट्रक्चर सिर्फ वहां पे अपने मेंशन करना है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की डायग्राम की तरफ आते हैं। अगर आप गौर करो तो बेटे ये एक सेल आपको दिखाया हुआ है। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो आपको येलो कलर, ब्लू कलर की, डार्क रेड, सॉरी क्या रेड कह रही हूँ बेटे, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है डेट इज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो येलो चीज आपको नजर आ रही है डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, और विद इन द सेंटर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, अब ये जो है कि सेल वॉल के बाद जो लेयर आती है, सेकंड लेयर, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप गौर से इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करें तो आपको नजर आएगा, इसका स्ट्रक्चर जो है बेटे कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रक्चर जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो ये आपके पास 2 तरह की जो है ये लेयर्स हैं, एक ऊपर लेयर है और एक यहाँ पे नीचे लेयर है। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये लिपिड बायलेयर्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, 2 लेयर्स होगी। ठीक है, इन लेयर्स के अंदर ये जो ब्लू कलर में आपको बेटे चीजें नजर आ रही हैं, दीज आर प्रोटीन्स, लेकिन ये प्रोटीन जो है डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटीन है जो अंदर बिल्कुल इम्बेडेड है, दैट इज नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन। जो इस तरह का प्रोटीन है जो एंड पे है और जो इससे डिफरेंट है, दैट इज चैनल प्रोटीन। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको छोटे छोटे डिफरेंट स्ट्रक्चर के नजर आएंगे प्रोटीन, दीज आर नॉन एज पेरिफेरल प्रोटीन, और दीज आर, ये जो सरफेस के बाहर प्रेजेंट है बेटे, इन सब प्रोटीन्स की शेप डिफरेंट है। अगर गौर से देखो, ग्लोबुलर, ठीक है, ये चैनल है, यहाँ पे जो है ये पेरिफेरल है, और जो बिल्कुल लिपिड के एंड पे अटैच है दैट इज नोन एज सरफेस प्रोटीन। और यहाँ पे एक और प्रोटीन है जो कि स्पाइरल शेप में है। इस तरह के प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, यानी कि देखो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में 2 तो लिपिड की लेयर्स हैं। ठीक है, लिपिड बायलेयर है। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि इन लिपिड बायलेयर्स के साथ क्या चीज़ अटैच थी बेटे, प्रोटीन्स अटैच थे। तो वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो हैं वो भी आपको इस डायग्राम में जो है वो नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी अटैच है, डेट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे अगर आप फर्दर आते हो नीचे बेटे, ये डायग्राम अगर आप देखो, पहले हम एक डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, दिस इज लिपिड, ये यानी कि उनमें ये जो आपकी पूरी डायग्राम है ना, इस डायग्राम में से एक पोर्शन कट करके आपको इनलार्ज करके जो है वो दिखाया गया। अगर आप इसको गौर से देखो इस डायग्राम को, तो बेटे दिस स्ट्रक्चर है, ये आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। लिपिड बायलेयर क्या चीज़ है, ये लिपिड बायलेयर है। ये ऊपर भी लिपिड की लेयर्स हैं, ये नीचे भी लिपिड की लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ब्लू कलर के आपको जो है प्रोटीन नजर आ रहे हैं, और इसके अंदर येलो कलर के जो है ये आपको कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, और लिपिड बायलेयर के अंदर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे।
ये जो आपको इसके अंदर ये लंबे लंबे, और जो फास्फेट ग्रुप थे आपको पता था उनका दो एंड है, एक ये वाला इनवर्ड और एक आउटवर्ड, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड, जिनको हमने हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड कहा था। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये लिपिड बायलेयर है। इधर अगर आप आते हो तो ये आपको दिखाया है फास्फोलिपिड। मैंने आपको कहा था ना कि ये जो लिपिड बायलेयर है इट इज़ ये इसको हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं, ये फास्फोलिपिड के बने होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि फास्फोलिपिड के दो एंड्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक है और एक कौन सा हाइड्रोफोबिक है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटे, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है फास्फोलिपिड का, ठीक है। ये इसका हेड है और ये लोअर पार्ट जो है दिस इज नोन एज टेल। ये क्या चीज़ है बेटे, टेल है। जो हेड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, और ये जो अंदर वाला है ये दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक। अगर आप यहाँ से गौर से देखो तो यहाँ पे भी आपको ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा, हेड है, और नीचे क्या है आपको टेल जो है वो नजर आएगी। और मैंने आपको कहा था कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो ये बेटे आपको फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आपने इसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह करना है, ठीक है। फिर आपने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है और फूल, ये पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर था, इसमें से एक कट करके आपको जो है लिपिड बायलेयर का दिखाया। लिपिड बायलेयर के अंदर से फास्फोलिपिड जो है उसको इनलार्ज करके भी आपको दिखाया गया है। अब हमने ये क्या कंप्लीट कर लिया बेटे, हमने जो है फास्फो जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। आगे हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटे बहुत सारे वाइटल रोल यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेसेसरी रोल जो है वो प्ले करती है। सबसे पहला क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन जो हैं वो एम्बेडेड थे। प्रोटीन का काम क्या होता है कि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। फास्फोलिपिड बायलेयर के दरमियान में जो है इट एक्ट एज ए चैनल और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ज़रिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट मालिक्यूल्स की, और ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। और ये किसका फंक्शन है, ये हमने किसका फंक्शन पढ़ लिया, प्रोटीन का। अगर ये आप यहाँ डायग्राम में आओ तो बेटे ये देखो यहाँ पे मैंने आपको चैनल प्रोटीन पढ़ाया। चैनल के अंदर जो है ये चैनल होते हैं छोटे छोटे, इन चैनल के जरिए देखो यहाँ पे एक खाली जगह होती है, जैसे एक आप लोग यूँ समझ लो कि जैसे एक स्ट्रॉ होता है, कोल्ड आप लोग कोल्ड ड्रिंक से जूसेस वगैरह लेने के लिए जो स्ट्रॉ लेते हैं, स्ट्रॉ अंदर से खाली होता है ना, बिल्कुल इसी तरह बेटे यहाँ पे ये चैनल्स है, चैनल के अंदर पाथवे बना हुआ है। उस पाथवे के जरिए क्या होता है कि आपकी जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। किसके जरिए, प्रोटीन्स के जरिए। ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी ब्लू कलर का दिखाया है, जो चैनल प्रोटीन है, ये क्या चीज़ है, ये प्रोटीन्स है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए चैनल एक्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस हो रही है। फिर अगला फंक्शन क्या है कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोस्केलेटन और एक्सटर्नल फाइबर के साथ अटैच करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एक्सटीरियर सरफेस पे अटैच होते हैं, और वो किसके साथ अटैच होते हैं, शुगर के साथ, और आइडेंटिफिकेशन बना लेते हैं, यानी कि अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, फोर्थ वन आता है कि कुछ प्रोटीन जो हैं दे फंक्शन एज रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और सेल का जो इंटीरियर है यानी कि बाहर से मैसेज लेकर इनवर्ड ऑफ द सेल तक जो है ये मैसेजेस जो है कन्वे करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी हार्मोन्स हैं। फिर इसका जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है कि कुछ प्रोटीन जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में और रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। यहाँ पे सारे, यहाँ पे आपकी अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो ये बेटे सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। दे आर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है, मटेरियल्स को जो है ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंकर्स हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये एंकर हुए हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन गए हैं, चैनल्स बन गए हैं, दे एक्ट एज रिसेप्टर और दे एक्ट एज एंजाइम कैटालाइज वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है वो भी स्टडी कर लिए। यहाँ पे अगर हम आगे आते हैं बेटे, नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो आउटसाइड है
इसके बाद नेक्स्ट बेटे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड, यानी कि इनसाइड नहीं, आपने आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या है कि चेन्स हैं किसकी, शुगर बॉन्ड विद प्रोटीन, यानी कि शुगर जो है उसकी प्रोटीन के साथ बॉन्डिंग हुई हुई है और इनकी चेन्स बनी हुई है। वो प्रोटीन जिसके साथ शुगर अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और वो लिपिड, अगर तो शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच है ना बेटे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लेकिन अगर शुगर के साथ लिपिड अटैच है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। दो डिफरेंट चीजें, दो न्यू चीजें हमने पढ़ ली, क्या, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक क्या पढ़ा हमने, ग्लाइकोलिपिड। अगर प्रोटीन के साथ, अ प्रोटीन विद अटैच शुगर, अगर प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। लेकिन अगर लिपिड के साथ शुगर अटैच हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ये स्पीशी टू स्पीशी जो है ये डिफरेंट है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये डिफरेंट है। कभी कभार एक ही इंडिविजुअल में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सबके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है बेटे वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। और जो के बाकी सेल से इनको जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। हमने तीन मेन चीज़ें पढ़ ली, एक हमने पढ़ा ग्लाइकोप्रोटीन, एक हमने पढ़े ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है कि जब आपके शुगर के साथ प्रोटीन अटैच हो तो डैट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। जब शुगर के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएगा तो डैट इज नॉन एज ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको शुगर को हम लोग कंबाइनली क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ ली। यहाँ पे आपके बेटे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, अगर आप गौर करो, ये मेम्ब्रेन्स हैं डिफरेंट टाइप की, एक है ह्यूमन रेड ब्लड सेल, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरिया, चार डिफरेंट मेम्ब्रेन्स आपको बताई हुई हैं। इनके अंदर जो है परसेंट बाय वेट आपको बताइए कि प्रोटीन कितने हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इनकी मेम्ब्रेन में जो है लिपिड्स कितने हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीनों में, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल अभी हमने पढ़ा था वो तीनों में क्या है, एब्सेंट है। जबकि ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो है उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कितने हैं, वो आपके 8 है। यानी कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जबकि बाकी तीनों सेल्स जो हैं वहां पे क्या चीज़ है, आपके कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो एब्सेंट है। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। मैंने आपको शायद बताया था कि जो यूकैरियोट्स हैं बेटे उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल्स थे वो प्रोकैरियोट्स में बेटे एब्सेंट होते थे। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले जो मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए थे वो बेसिकली हम लोग प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ रहे थे, वो प्रोटीन जो के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसके स्ट्रक्चर में जो है प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज सेमी पोरस बैरियर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। द मेम्ब्रेन एक्ट एज ए बाउंड्री होल्डिंग द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज permeable to specific molecules, however, that allows nutrients and other essential elements to enter the cell and waste material to leave the cell. Small molecules such as oxygen, carbon dioxide, water are able to pass freely across the membrane, but the passage of large molecules such as amino acid and sugar is carefully regulated. Eukaryotic cells also have membranes around some of their interior organelles like the exterior plasma membrane. These membranes also regulate the flow of material into and out of organelles. टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हम लोग फंक्शंस जो है वो डिटेल से कर लेते हैं। मैंने जो भी टॉपिक रीड आउट किया है, डेट आर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे जो मेन फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज सेमी पोरस बैरियर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। सेमी पोरस का मतलब होता है कि ये सेमी पोरस है, कुछ मॉलिक्यूल्स तो इसमें से पास डाउन हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ये जो है पास आउट या ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का इनका मेन फंक्शन है, दे एक्ट एज ए बाउंड्री। और बहुत सारे सेल कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको इकट्ठा किया होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है।
एंड न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल एलिमेंट जो हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, और जो सेल का वेस्ट मटेरियल है वो भी जो है सेल से जो है वो लीव करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा बेटे कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो हैं वो भी फ्रीली जो है मेम्ब्रेन में पास होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। और जो लार्जर मालिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड हो गए, शुगर हो गए, ये जो हैं इनको भी जो है पास होने दिया जाता है, लेकिन उतनी इजीली नहीं जितने के वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास डाउन होते हैं। इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटे, ये क्या करती है कि जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज हम आगे पढ़ेंगे, उनके अंदर जितना भी फ्लो ऑफ मटेरियल जो होता है, उनका इन होना और उनका आउट होना भी सारा का सारा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही के थ्रू जो है वो होता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, इन एंड आउट। उसमें हमने क्या पढ़ लिया? हमने डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आपके पास ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और वाटर आ गया, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स में आपके पास क्या आ गया? अमाइनो एसिड एंड शुगर आ गया। अब दो तरह के मॉलिक्यूल्स आ गए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अलग बताए मैंने आपको, लार्ज मॉलिक्यूल्स अलग बताए। फिर क्या है, जो सेल का वेस्ट मटेरियल है वो भी सेल से लीव इसी के जरिए जो है वो होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तमाम का तमाम जो फ्लो ऑफ मटेरियल है उसको जो है बेटे रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया? ये इसके हमने फंक्शंस पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट इज टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है उसको अच्छी तरह से, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे बेटे, वो टेक्निक्स हम देखेंगे। नंबर 1 इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन रिवील द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर and associated proteins. Scanning electron microscopy is useful for examining the surface topology of cell and membranes. Confocal microscopy used laser scanning and fluorescence to create sharp, detailed image of the cell membrane. Total internal reflection fluorescence microscopy is used for high-resolution images of membrane and its interior with the cytoskeleton and other cellular components. Atomic force microscopy provide topographical images of the cell membrane at high resolution. X-ray crystallography is used to determine the atomic structure of membrane protein. हमने आगे भी है आपका lipidomics involve the comprehensive analysis of lipid in the cell membrane using technique like mass spectrometry. Fluorescence recovery after photobleaching is used to study the motility and dynamic of membrane protein and lipid. Involve the bleaching of fluorescently labeled region of the membrane with the laser and observing the recovery of fluorescence as unbleached molecules move into the area. अब हमने जो टॉपिक रीड किया है बेटे वो क्या चीज़ है कि आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टडी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपने यूज़ करनी है। सिर्फ और सिर्फ इन टेक्निक्स के नेमिंग्स आपको आने चाहिए, आपने वो कुछ याद नहीं करना, सिर्फ पॉइंट्स में इनके नेम्स याद कर लो कि टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होगी। सबसे पहली टेक्निक जो यूज़ होती है डैट इज़ नोन एज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि सबसे पहली टेक्निक का नाम क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये क्या है? ये माइक्रोस्कोपी है जिससे आप लोग लिपिड बायलेयर और इससे एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है बेटे वो आप देखते हो। दूसरी टेक्निक जो यूज़ करते हैं डैट इज़ नोन एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इससे हम लोग क्या करते हैं, सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो सरफेस का स्ट्रक्चर है, जो उसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसको हम डिटेल से ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर जो आप यूज़ करते हैं डैट इज़ नॉन एज कॉनोफोकल माइक्रोस्कोपी। कॉनोफोकल माइक्रोस्कोपी से हम लोग क्या करते हैं, लेज़र स्कैनिंग और फ्लोरेसेंस से जो है हम लोग शार्प और डिटेल इमेज जो है सेल मेम्ब्रेन का वो हमें जो है वो हम देखते हैं। फिर आपका आता है जो फोर्थ टेक्निक है डैट इज़ नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम जो बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इमेज है हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो बनता है, जिससे उनका जो एसोसिएशन है साइटोस्केलेटन के साथ और दूसरे कंपोनेंट के साथ वो भी आपको जो है क्लियर नज़र आता है। उसके बाद जो टेक्निक है डैट इज़ नॉन एज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोपोग्राफिकली इमेजेस लेते हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के एट हाई रेजोल्यूशन। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हो।
अगली टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं डेट इज़ नोन एज लिपिडोमिक्स, ठीक है। क्या है लिपिडोमिक्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं किसका स्ट्रक्चर, बेटे लिपिड्स का, नाम से पता चल रहा है लिपिडोमिक्स। लिपिड सेल मेम्ब्रेन में लिपिड जो हैं, जो लिपिड बायलेयर हैं, अब पता है ना 2 लेयर्स हैं, ठीक है। लिपिड की जो दोनों लेयर्स हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लिपिडोमिक्स से देखा जाता है। और इसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, इसके अंदर यूज़ होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक जो आपकी यूज होती है डेट इज नोन एज फ्लोरोसेंस रिकवरी, ठीक है। फ्लोरोसेंस रिकवरी क्या चीज़ है बेटे, ये इसमें क्या होता है, फ्लोटो जो प्रोसेस यूज होता है इस टेक्निक में, टेक्निक का नाम फ्लोरोसेंस रिकवरी है ना। इसमें जो चीज़ यूज हो रही है वो क्या है, फोटो ब्लीचिंग है। इससे इस प्रोसेस से आपको क्या पता चलता है, मोबाइलिटी, यानी कि जो लिपिड जो प्रोटीन के अंदर जो डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है, वो सारी की सारी आपको पता चलती है। और इस प्रोसेस में हम लोग ब्लीचिंग करते हैं और लेबल रीजन जो हमारी मेम्ब्रेन का है उसको हम लेज़र के साथ उसकी ब्लीचिंग करेंगे, उसको लेज़र के साथ हम फाइंड आउट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उस एरिया में, ठीक है। उस एरिया में हमें पता चल देगा कि कौन कौन सी मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना, कौन से आपके स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो सारी की सारी जो मूवमेंट है वो हमें इस टेक्निक से ही पता चलती है। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, आपको डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो हम यूज़ करके पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी कि लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो प्रोटीन एम्बेडेड थे वो, और इसके अंदर जो मोबाइलिटी जो मूवमेंट हो रही थी, ये तमाम की तमाम जो है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हमें नज़र आती हैं। तो उसमें जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आपने उन टेक्निक्स के नेम याद करने हैं बेटे और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में एक एक लाइन जस्ट बतानी है कि उस टेक्निक में फंक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। हमारा टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको पढ़ाया, विद डायग्राम जो है आपको मैंने एक्सप्लेन किया। हमने इसका फ्लूइड मोज़ाइक पर मॉडल पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट ये जो है नोट्स दिए हुए हैं, ये भी हम देख लेते हैं। द इंटीरियर ऑफ द लिपिड बायलेयर शीट इज हाइड्रोफोबिक, इट रिपेल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल दैट अटेम्प्ट टू पास थ्रू इट। If this cell was fully encased in pure lipid bilayer, it will be completely impermeable to water soluble molecules, that is sugar, polar amino acid. That is why in addition to phospholipid molecule, the membrane also contain protein that provide passageways across the membrane. लिपिड बायलेयर के इंटीरियर यानी कि इनर साइड पे बेटे आपको पता है हाइड्रोफोबिक एंड था, एक था हाइड्रोफिलिक और एक था हाइड्रोफोबिक। यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोफोबिक एंड की। हाइड्रोफोबिक एंड जो है ये क्या है कि रिपेल करता है किसको, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अब पास होने के लिए, कि पास आउट हो जाए, वहाँ से निकल जाएं, ठीक है। और जो है इट एक्ट एज ए कम्प्लीटली इम्परमेबल मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर, और दूसरे कौन से थे आपके पास, अमाइनो एसिड, ये। और जो है उसके बारे में आपको बस बताया हुआ है, यानी कि ये पैसेज वेज जो है वो क्रिएट करता है फॉर द वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो शुगर है उसके लिए और किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए। हम किसकी बात करें बेटे, हमने बात की हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो वाटर फेरिंग थे, ठीक है। और जो वाटर फेरिंग थे आपको पता था दे आर ओरिएंटेड इनवर्ड, इनकी डायरेक्शन जो थी इनवर्ड थी, ठीक है। और इनका मेन काम क्या था, वाटर फेरिंग थे। तो ये क्या करते, रिपेल्स वाटर को बाहर की तरफ को जो है वो निकाले थे ताकि वो वाटर वहाँ से पास आउट जो है वो हो जाए। यहाँ पे एक और चीज़ है आपकी, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट सेल इज क्रूशल टू लाइफ इन, इट अलाउज सेल इन एन एम्ब्रियो टू सॉर्ट देमसेल्फ इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन. It also helps cell to immune system to recognize and reject foreign cell, for example infectious bacteria. आपको यहाँ पे जो है एक और इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो भी इसका जो है वो बताया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स थे, ठीक है, कि ये जो है हेल्प करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम में भी टू रिजेक्ट और टू रिकग्नाइज द फॉरेन सेल दैट इज इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, जो कि ह्यूमन बॉडी में भी जो है इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा था। फिर मैंने आपको जो है डिफरेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन थे प्रेजेंट। हमने जब डायग्राम पढ़ी थी तब मैंने आपको बताए थे कि बहुत सारे जो हैं प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं
इनकी जो है इसमें इनके स्ट्रक्चर में जो है वो प्रेजेंट है। तो ये तमाम के तमाम प्रोटीन्स का जो है फंक्शन है। तो अगर आपके पेपर में प्रोटीन का फंक्शन आता है तो बेटे आपने ये वाले फंक्शंस बताने हैं, और अगर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन आते हैं तब आपने जो है ये वाले फंक्शन बताने हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये भी मैंने पढ़ाया। एंड पे आपके फंक्शन आ गए, और इन द एंड आपका क्या था, टेक्निक्स आ गई टू स्टडी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटे हमारी कंप्लीट हो गई है। कमिंग लेक्चर में मैं आपको साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।